Hi, hello everyone. Hi, good morning everyone. Are you able to hear me clearly? So just put it on the chat if you have any difficulty in hearing me or good morning Gautam or seeing the screen. I think I'm at home today. Okay. Yes, we can hear you. Yeah, that's good. Okay, so let the people join and let's see what a week it was. Every day 200 points movement and finally did nothing. So basically, I think what I got to know from Motilal is the rule has been deferred. Okay, so it is now deferred to June rather than 2nd May. We might see some movement in the market. So that rule is of margin, जिसकी वजह से कल इतना sudden fall था, right? So I think where is it? Mm, Motilal, I know remiser, yeah. Okay, so this is what I got to know from them. Dear, dear all, 50% cash and sorry, 50% cash and collateral margin rule extended to June 2022. We'll update further developments by May end. So basically, yesterday, even I had a margin call from Motilal because I have my pledge shares against which I am doing my trading in Motilal. So they had asked for 50% margin. तो वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा because if I am trading a huge quantity, then I'll have to keep huge cash. तो वो तो नहीं होगा अभी. The rule is अगर 1.5 लाख का मार्जिन है एक लॉट बैंक निफ्टी का तो खाली 75,000 कैन बी टेकन फ्रॉम द प्लेज शेयर्स. चाहे आपने 10 लाख के शेयर्स प्लेज किए हो तो भी खाली 75,000 कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम दैट. अनदर 75 हैज टू बी इन कैश एंड इवन एमटीएम इन कैश. तो वो अगर आप देखने जाओगे तो इट्स अ ह्यूज रिक्वायरमेंट दैट द न्यू रूल गिव्स. Okay, so as per this, that rule was actually supposed to start from 2nd May, which is Monday. Now that has been moved to June 22. Okay, and I know this is another business which the brokers, SEBI, and everyone will get because मेरे को बाद में कल एक और एक कॉल आया था कि we will provide you money at interest of 9% per annum. I mean, 9% per annum is also big because, and that is also only when I utilize the money and what money I utilize. तो अपने को चलेगा कि अपना 40 ट्रेड होता है साल भर में and that 40 trades might be live for you can say 120 days. आप मैक्सिमम 3 दिन पकड़ो एक ट्रेड का ऑन एन एवरेज. तो जितनी बार मैंने यूटिलाइज किया उतना मतलब वो मेरे को 9% लगाएगा. तो विच कम्स टू अराउंड साल भर का 9% है तो इट विल कम टू 120 डेज के हिसाब से करने जाएंगे तो अराउंड 4% पर एनम which is what I'll have to pay. But that again is a huge because it's like almost मेरा फर्स्ट ट्रेड अगर सक्सेस हुआ तो उसका प्रॉफिट वो लेके जाएगा वैसा है. ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज एनबीएफसी को फायदा है, बैंकिंग्स को फायदा होने वाला है बिकॉज ये अभी सब लोग यहाँ से उठाएगा पैसा. सो दैट इज द न्यू रूल ऑल अबाउट. ओके, सो नाउ इसको मैंने बंद करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई डाउनलोडेड डेटा आफ्टर दैट. हाँ, सो ओके, लेट्स स्टार्ट. So actually, sorry, last week I was not able to do this because I was out for the weekend and then I was not well actually. And that is the reason why even at late night after returning, I was not able to do anything. Okay, so let's do today for the May weekend.
Okay, so this is going to be the 2nd May. Okay, so basically the thing is, we have a short week coming up. शॉर्ट वीक क्यों? क्योंकि ट्यूसडे छुट्टी है. 3rd May को there is a trading holiday due to Eid. So we will have a short week coming up. Okay, so if people are doing, I think option writers के लिए तो ये Friday को ही almost, it was like an expiry for them. Now they might see, more movement if possible on Monday, and then maybe, not sure whether they'll be there or not. I think कल सब राइटर्स लोग मर गए रहेंगे क्योंकि जो मूवमेंट आया था एंड में, दे वुड हैव गिवन द पुट अ ह्यूज स्पाइक एंड कॉल आई थिंक डिडंट गिव अप, क्योंकि फर्स्ट डे था वीक का, तो कॉल का प्रीमियम भी नहीं घिसा रहेगा. आई सॉ जल्पेश भाई यू आर ऑल वेल, आई नो योर स्ट्रेटेजी इज फुल प्रूफ. Okay, so let's start. अच्छा, जल्पेश भाई आके गिर गए क्या? ही थिंक हाँ, इज देयर. ओके. So now let's see what we see on this charts for Bank Nifty. See, Bank Nifty monthly, okay, final support is 35,400. Once broken, we might see some fall more. We might come back to 20 MA. Okay, that is one thing. And look at here, it's breaking 60. Okay, और ये जो हैमर का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम ऑलमोस्ट इधर है. So we are not sure whether this volume is going to be defended or not. Okay, और ये अगर टूटा ना, तो it is going to be like, super duper fall, सीधा इधर लेके आ जाएगा इसको, because ये वॉल्यूम का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है. अगर ये वॉल्यूम का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो डबल क्वांटिटी नीचे गिरेगा, तो फॉल मैसिव रहने वाला है. ओके, वीकली it's still resisting, you can say 20 MA. Okay, it's not able to cross this, and there is a bigger gap here now. So 37,500 can be the upper level right now for any trade that you we take. वो भी बहुत मुश्किल है फिलहाल, तो आई विल से 37,200 itself is going to be an issue. Okay. And here again you see that there is a gap resistance जो दो बार तीन बार उसको नीचे फेंक के आया है. So that is 37,200 itself. Okay, so the main thing is, yes, we are still around the support of 40. Okay, so we are at 40 support on daily charts here. Okay, so since I am starting with Bank Nifty को बाद में देखेंगे, but see this volume, ये volume के साथ misunderstanding मत करना. This is the volume because of your expiry. Okay, roll over volume है ये actual volumes नहीं count होते. Okay, और इसमें हमको पता नहीं चलेगा contract क्या है. Okay, and if you look at the candle wise, it's a dark cloud cover again yesterday. Okay, so this again might be retested because see there is a gap here. ये गैप पे अटका दिया इन लोग ने. ओके, तो कल का लो नहीं दिखाया इधर. ओके, कल का लो, एक मिनट, माय बैड, आई एम इन जून एक्चुअली. ओके, एक मिनट रुको, मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा. ये फ्यूचर टू है, फ्यूचर टू मीन्स जून है. मैं वही सोचू ये लो क्यों नहीं दिखा रहा है, कल का लो तो कुछ और था भाई. हाँ, सी नाउ एडजस्ट हुआ. ओके, सो नाउ इट इज 36,039. Okay, but chart would be same, the values would be different. Okay, so again it is going to be यहाँ पे हिसाब से तो it is actually डार्क क्लाउड कवर भी नहीं दिखा रहा है, एनगल्फिंग दिखा रहा है ये तो. ओके, सो more bad. And यहाँ पे actual volume है, we see this is the actual volume. Now this is the continuous chart, so this volume is greater than this last 2-3 days volume. और ये तीनों कैंडल को उसने एक साथ उसके अंदर में ले लिया. सी, okay, so this seems to be a bit bad sign for the bulls.
हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, टॉप बॉटम वाले हम। ओके, बट हमको अभी एंट्री कहाँ है वो भी डाउटफुल है, बिकॉज एंट्री छीन ली कल, यहाँ पे एंट्री था। ओके, सो बिलो 60, resisting 20 MA, and this now the support lies directly at 35,500. Okay, then would be around 35,000. Okay, 35,100, 35,000. Okay, and then might be this, which is 34,600. So बहुत दूर दूर तक सपोर्ट है, मतलब उतना दूर जा सकता है। ओके, इमीडिएट सपोर्ट इज जस्ट अराउंड 35,900, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब तक होल्ड करके बैठा है, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, ये देख लो, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। ओके, बट if we open now below that level itself on Monday, there is a strong chance it will come till 35,200, 300. Okay, so let's write down for Bank Nifty first. ओके, डेली बेरिश डार्क क्लाउड कवर था 2 वीक पहले, अभी भी कुछ चेंज नहीं है, बेरिश एनगल्फिंग है ये। गैप रेजिस्टेंस है। ओके, वीकली इज आल्सो डोजी एट प्राइस सपोर्ट नहीं, एट 20 MA रेजिस्टेंस हो गया ये, 20 MA एंड गैप रेजिस्टेंस बिलो 60 तो छोड़ दो, बहुत दूर है वो 60 के। ओके, एंड मंथली राइट नाउ इट्स ह्यूज डोजी। उई, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा मत कर। हाँ, डोजी अराउंड 60। ओके, मिनट, मंथली 20 MA के ऊपर था ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। नाउ सबसे बड़ा बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, अभी पहले तो भाई तू इसको ही ऊपर कूद के दिखा, फिर बेटा तू 36 नहीं, 37 100 के ऊपर जाके दिखा, और फिर बेटा तुम ये गैप को क्लोज करके दिखाओ। ओके, तो इतना सारा रेजिस्टेंस है ऊपर में, नीचे में सपोर्ट किधर है? फर्स्ट सपोर्ट इज दिस, जो मेरे ख्याल से लिया जाएगा, मतलब तोड़ा जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग, बट अगर ये रूल डिफर्ड हुआ है, देन वी विल हैव टू सी व्हाट इट डज। बाय द वे, क्योंकि ये रूल के वजह से ही अपना मार्केट तो रूल के वजह से ही गिरा था, बिकॉज अंडरस्टैंड एवरीवन विल हैव टू हैव कैश इन हैंड टू ट्रेड इन फ्यूचर्स। जो भी लोग मार्जिन यूज करते हैं, मार्जिन यूज करने वाले 80% रहेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक टू अस, कुछ गलत है नहीं है। ओके, सो लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी, निफ्टी उसमें भी सेम है भाई साहब, भी वॉल्यूम के साथ गिरे हैं, सेम चार्ट है, कुछ फर्क नहीं है। देखो, डोजी के बाद डोजी 20 में रेजिस्ट, मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इधर भी। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लुक एट इट, इट्स अ शूटिंग स्टार ऑन मंथली, सो फार शूटिंग स्टार ऑन मंथली, और मंथ खत्म हो गया। यस, आज मंथ खत्म हो गया, मतलब कल लास्ट ट्रेडिंग भी हो गया ये मंथ का, तो नाउ नो मोर एनी कैंडल्स फॉर दिस मंथ। सो 6900 टूटा के ये फिर टूटा टूटा एक सितारा ऐसे ही टूटा, ऐसा होने वाला है। बट वी आर गुड, सी मेन थिंग इज, अगर आप डाउ थियरी फॉलो करते हो ना, तो एकदम सिंपल था ये। ओके, सो वी वर वेटिंग नॉर्मली फॉर डाइवर्जेंस एंड ऑल, this time they don't have divergence in place, but they had lower top, lower bottom. Okay, so this is going that way only, तो अभी ये नया बॉटम है। ओके, सो वी माइट कम टिल this 15,800, 15
900 लेवल्स वंस, यहाँ पे आके अगर वो सपोर्ट लेता है और थोड़ा बाउंस आता है तो वी माइट सी अगेन अराउंड समथिंग हियर, ये गैप तक फिर वापस गिरेगा। ओके, मेन थिंग इज सी कोरोना के वजह से जो भी false movement was on the upside, no, now it will correct in the market. That is what my feelings are, because industries have suffered. And I think I saw one article जो RBI ने publish किया था एक या दो दिन पहले, we will recover from the COVID losses only by 2035। मतलब दे आर नॉट इवन सेइंग कि 2 साल का लॉस, वो लोग तो बोल रहे कि और 13 साल लगेंगे। ओके, बट उतना तो मार्केट नीचे नहीं रहेगा, वो 13 साल में मेरे ख्याल से इससे दुगना या तिगना हो गया रहेगा इंडेक्स। दैट इज अनदर स्टोरी, बट दैट that itself tells you that that there is a hit in the market, and that is where economy will do some impact to this entire industry। ओके, सो निफ्टी भी सेम चार्ट है, कुछ गलत नहीं है और कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, ओनली थिंग इज निफ्टी स्टिल अबाउ 60, वो उधर मेंटेन्ड है। सी मंथली इज अबाउ 60। ओके, वो इतने टाइम से 60 के ऊपर है, मतलब नवंबर 2020 से लेके पूरा 1 साल के ऊपर। तो अभी थोड़ा तो नीचे आएगा ना, कितना टिकेगा, तो थोड़ा हक बनता है थोड़ा नीचे नीचे घूम के आएगा और क्या। So this looks okay to me. It will come at least CIA level पे तो एक बार आ ही जाएगा वो। 15,800 आएगा नहीं आएगा, that is this level। Okay, यहाँ कहीं यहाँ तक नीचे, this is the bottom, this is the bottom। Okay, ये bottom मारता है कि नहीं मारता है, let's see। But if it has to follow down, it will come down। Okay, so let's write down one more line here। ओए 17,135 कुछ ज्यादा दूर नहीं है 2 हफ्ते में। Okay, so daily bearish candle, bearish candle, bearish candle, engulfing at 20। man price support का है, कुछ price support नहीं है। bearish engulfing below 20 है में, below 60 तो बहुत दूर का बात है ना बेटा, below 20 में ही है वो। weekly doji, MA20 resistance, एंड मंथली तो शूटिंग स्टार हो गया, मंथ कंप्लीट हो गया, आई कैन बिंदास लिख सकता है शूटिंग स्टार इन मेकिंग का क्या बेटा, शूटिंग स्टार अबाउट 60। ओके, नाउ रेजिस्टेंस इज, इसके ऊपर कूद नहीं रहा है, इनफैक्ट उसको और भी एक है ये, दिस इज फाइन। ओके, दिस इज दैट रेजिस्टेंस। तो 17,500 इज फाइन, क्योंकि यहाँ तक गैप है, then 17,700 and then there is 17,900, but I think अभी तो उसको ये भी नड़ेगा। So if I have to revise a bit, 18,000 तो अभी ड्रीम हो जाएगा। मतलब 2 हफ्ते पहले से ऐसा लग रहा था कि अब भी नया हाई मारेगा, और मार्केट ने रुख ऐसा बदला कि पूरा गार्डन गार्डन से पूरा बिराना आ गया। Okay, so now support is 16,800, 16,450 के आसपास है। So this is one support 16,800। Okay, and 16,600 के आसपास है, 16,400 है। Okay,
अच्छा, किसी ने तो कुछ चैट में किया, रिवर्सल पॉसिबल ऑन अपसाइड. Reversal possible on upside is a little doubtful. Okay, we'll have to see that. ये एसडी का फुल फॉर्म क्या है सर? हु इज आस्किंग दिस? क्योंकि नॉर्मली मेरे को नाम नहीं समझता है, आपका खाली इनिशियल दिख रहा है एस और डी, और एस और डी में से इधर कोई नाम नहीं दिख रहा है मेरे को. So if you are asking, if you can just identify yourself also would be good. Okay. See, अपसाइड कहाँ पे पॉसिबल होता था? अगर ये गैप के ऊपर में क्लोज आता है, सो दिस इज द लेवल वेर इट विल रेजिस्ट अगेन, बिकॉज 20 एमए भी उधर ही है. ओके, सो इफ आई क्लोज दिस गैप 17,520 के ऊपर जब भी बंद आएगा, ओके, then there is a chance that it might come back to 17,700 and resist. ओके, अगर ये रेजिस्ट भी बंद किया तो इधर तक आएगा. ओके, बाकी यहाँ तक आने का चांसेस नहीं दिख रहा है. दूसरा, इफ यू लुक एट द वॉल्यूम हियर, दिस वॉल्यूम is not supporting my bullish view. Okay, so you have to be very careful. This particular candle with this volume. Okay, so this can be also. कोई बोल रहा है क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रही है इसके लिए. इज एनीवन स्पीकिंग? अच्छा, केदार सर, आप कुछ बोल रहे थे. आई डाउट. ओके, नहीं, ठीक है. एक मिनट, लग रहा है मेरे को खाली ये इसमें क्यों जा रहा है भाई, मेरे को यहाँ पे आवाज क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सेम में सिस्टम है ना बेटा तू? हाँ, ये भी सेम में सिस्टम है. ओके, शुड बी ओके. ओके, ओके, ओके. सो मुझे थोड़ा डाउट है. सी, लास्ट एनगल्फिंग एकदम नीचे आना चाहिए. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लास्ट एनगल्फिंग. ओके, अगर आपने मेरा ये सुना रहेगा कैंडल स्टिक्स पे, तो उस पे मैं नॉर्मली आई हैव एक्सप्लेन व्हाट डू वी मीन बाय लास्ट एनगल्फिंग. ओके, सो लास्ट एनगल्फिंग यहाँ पे है. सी, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज लास्ट एनगल्फिंग. दिस इज लास्ट एनगल्फिंग, कि जहां के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है. ओके, नाउ यहाँ पे फिर सफेद वाला होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे you must be at the bottom. This is in midway, it's not a bottom. Okay, so that is the reason why ये लो टूटा ना, तो it's going to be major. Sorry. Excuse me. चलो. Okay, if this low is broken, no, we are definitely seeing a more deeper fall in the market. Okay, because this is a critical support level. दो बार उधर सपोर्ट लिया है. ये पैनिक लो था, जो पैनिक लो को डिफेंड किया गया था. अगर अभी ये पैनिक लो टूटता है तो ज्यादा जाने का चांसेस है. हाँ, क्लोजिंग बेसिस है, इट हैज टू बी क्लोजिंग बेसिस. ओके सर, कैन यू टेल योर नेम? एसडी का फुल फॉर्म क्या है, कहीं बताएंगे क्या? मैं किससे बात कर रहा हूँ? सोहम. अच्छा, 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 वो अपना पार्श्वस फ्रेंड, राइट? पार्श्व नहीं, प्रशम. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. हाँ, हाँ, हिज फ्रेंड्स फ्रेंड. ओके, अरे बाप रे, बहुत दूर का रिश्ता है. चलेगा. Okay, so that is what we are looking at. So now let's go. I think we did a write up for Nifty. थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है मेरा, उम्र हो गया. हाँ, हो गया. ओके, लेट्स गो टू द अदर इंडाइसेस क्विकली. आई एम सॉरी, थोड़ा आज घर पे हूँ तो रिलैक्स हो. आईटी, बाप रे बाप, ये देखो, ये थोड़ा मेरे को गुड बॉय दिख रहा है. और जब भी निफ्टी गिरता है, हिस्ट्री है कि आईटी और फार्मा हेल्प करता है. तो इसका क्लोज क्या है बेटा?
525. ओके, तो ये और ये कंपेयर में तो कुछ है नहीं चलेगा, बट देर इज outside inside. Okay, outside inside. RSI also shows divergence, Bollinger Band divergence. Okay, but your entry can be only on it breakout of this line. ओके, सो ये लाइन ट्रेंड लाइन के ऊपर में, सो 32,000 के ऊपर में अगर ये इंडेक्स निकलता है, ओके, बट देन देर इज इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑफ गैप, सो आई वुड सजेस्ट 32,300 के ऊपर में अगर आईटी इंडेक्स निकलता है, इट कैन कम बैक टू 33,300, देन देर इज अगेन अ ह्यूज गैप विच इंडेक्स में ही है, तो स्टॉक्स तो पता नहीं. ओके, एंड लुक एट दिस हैज ब्रीच्ड 40. मतलब जहां पे हम 4-5 महीने पहले, यू इफ यू रिकलेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड इंडेक्स, गोल्डन इंडेक्स, अभी ये तो पित्तल इंडेक्स हो गया. सब सब देखो 40 के नीचे है. ओके, सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू द मार्केट, एंड आउ, दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड. लुक एट दिस. ओके, it's a very very huge black candle, and जो भी हम कैंडल स्टिक्स देखते हैं, कैंडल स्टिक्स बेरिश कैंडल, आप किसी को भी पूछोगे, दे विल टेल यू वेरी क्लियरली, bearish candle at resistance makes sense, and bearish candle breaking of support makes bigger sense, right? So this was the support so far. Okay, this is the support line broken by a good black bearish candle. Okay, so this has been there, one thing. Second support that this thing has broken is 60. See, it's below 60 now, 58.63, but मैं उसको थोड़ा benefit of doubt दे सकता हूँ. Okay, we can wait for next 10 to 15 days to see does it break 58 and goes below that, or shows a bounce back. Okay, इसको थोड़ा benefit of doubt देंगे कि ये अभी भी 60 support पे है, but my view says resistance has done it final thing. Okay, ये यहाँ पे ये सब breakout है on a downside, so now you can expect it to come till here maybe, and maybe here, but you know, people have the other idea, लोगों को लगता है डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, so then there can be, a spurt in IT stocks. But yes, let us see how it helps, because my weekly is below 40. A band walk has just started on weekly. Band walk has started. ये देखो. Okay, monthly is broken 60, and daily is also below 40, but it shows some divergence. But divergence के लिए उसको इसके ऊपर में आना, मेनली एक तो ये शूटिंग स्टार भी है, शूटिंग स्टार के ऊपर आना चाहिए, बट चलो मैं शूटिंग स्टार भी छोड़ दूं, तो इसके एक बार 32,300 के ऊपर में बंद आना चाहिए, देन ओनली यू कैन सी some recovery in IT stocks. So IT भी पिट चुका है. अरे 34 मतलब ये तो कितना गिरा है, गिरा हुआ इंसान 31 हो चुका है ये. ओके, सो डेली बेरिश सेटअप with lower band walk below 40, ये रहने देता हूँ सेटअप, along with bullish divergence. But now see, this bullish divergence is more than 7 candles. ये 1 2 3 4, okay, 4 5 6 7 8 9 candles है. Okay, so now see, bullish divergence का भी एक concept है. We don't see a number of candles if my weekly and daily, weekly and monthly are above 60, or exactly at 60 or 40. Okay, so वो एक अपना strategy है. जिन जिन ने simply indicators किया है, they would know it. Okay, okay, daily divergence and daily at 40 or 60 support. But in this case, weekly and monthly are also broken.
So now this divergence has to be a powerful one, which is 3 bar. ये 3 बार नहीं है, ये तो 9 बार है, उसका मल्टीपल है. Okay, so then also it seems that, and ये भी गया लगता है. I am not saying anything, but मेरे को बहुत bearish market दिख रहा है अभी. Okay, so let's see how it continues. I think Amar sir is going to make good money because he loves to short. So let's see. Okay, मैंने खाली मेरा ईयरफोन निकाल के वापस डाला because I'm not able to hear you guys. Hopefully I am audible to you guys now. मेरे को आपका आवाज नहीं आ रहा actually. Yes. There's something wrong, I don't know. Okay. So this does not show me anything. Bearish candle breaking 60. Okay, so along weekly bearish candle breaking of 20 में तो छोड़ो, breaking of bearish candle doing lower band walk below 40. Yes. Acha, okay, you are able to hear, that is good. Ah. Okay, let's see other indices. फटाफट. रियलिटी तो रियलिटी चला गया, अभी इमेजिनेशन चला गया. इसको इसके ऊपर ही बाई था, उसके ऊपर कभी गया ही नहीं. ओके, सो ये भी गया काम से. जाने दो इसको भी. ऐसे भी इक्विटी के ज्यादातर स्टॉक्स है. हाँ, डीएलएफ कैन बी शॉर्टेड, मेक मनी देयर. लुक एट इंफ्रा. इंफ्रा भी बेरिश. या हाँ, लुक एट दिस resistance, bearish engulfing, 60 resistance, everything. मतलब overall all indexes are saying we don't want to go up anymore. ऐसा दिख रहा है ये तो. चले हम चले अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐसा है ये तो. देखो वीकली भी 60 रेजिस्टेंस. ओके, सो ये सी देयर इज अ फ्लैग जैसा सेटअप है यहाँ पे. ओके, अगर आप देखने जाओगे तो दिस लुक्स गुड. ओके, this this and then can be a breakout, but this tells me ये बैडमिंटन नेट ज्यादा बनेगा. ओके, फ्लैग के जगह पे. सो लेट्स सी क्या बनता है. इंफ्रा स्टॉक्स स्टिल ओके टू हैव ऑन अपर साइड है ये. अरे निकल बाबा, बेरिश डाइवर्जेंस है कि नहीं देखने थे. ओके, सो नाउ इफ यू लुक एट इट, सी 4 बार बेरिश डाइवर्जेंस भी है इसमें. ओके, 1 2 3 4. Price is lower, RSI is high. Sorry, price is higher, RSI is lower, which tells me there is a bearish divergence 4 bar, which is powerful setup. So again, monthly shows bearishness in infra as well. Okay, so weekly is resisting 60, daily resisting 60, and divergence on monthly. Okay, so this all things are now waiting for a good correction. Okay, वी मस्ट बी थिंकिंग ये करेक्शन ही तो चल रहा था अभी तक. बोला नहीं, वो तो प्रिपेयरिंग था. नाउ द करेक्शन विल स्टार्ट. ओके, सो maybe yesterday's news of 50% cash and all indices are negative. Now, sir, but see, even if that yesterday's news was not a news of yesterday, no, it was there since 24th of February. Okay, so that is already there. Now people are preparing for it. Okay, it is deferred by a month. They have not said they have cancelled it completely. No, so now they have been given a year, a month's time to get the money ready. Who knows? Okay, so ये सब चीज तो अभी पता नहीं ना. We'll have to wait and see. एफएमसीजी क्या बोलता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, तेरा शैम्पू कितना चलेगा? देखते हैं. ये भी देखो 60 रेजिस्ट कर रहा है डेली पे. सी दिस.
So there is a bigger fall expected. All indices are on that verge. Even this has got some resistance of upper band here. This has just crossed 60. Now this, see, जैसे मैंने आईटी के लिए बोला ना कि 58 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक we will be okay to say that it is still at 60. ये भी at 60 रेजिस्टेंस बोलेंगे जब तक 62 के ऊपर नहीं जाता है. ओके, सो नेक्स्ट 10-15 दिन में ये देखना है कि ये भाई साहब इसके ऊपर में जाता है कि नहीं. ओके, ये बिकॉज दिस इज शूटिंग स्टार का लो. सेकेंड इज उसके बाजू वाला बेरिश कैंडल का 50%. ओके, अगर इसको उसके ऊपर जाना है तभी इट कैन कम टिल दिस लेवल, और फिर यहाँ पे वी माइट सी बेरिश डाइवर्जेंस, एम सेटअप सब. बट वहां तक जाने के लिए उसको पहले इसको क्रॉस करना है. ओके, एंड 62 ऑन दिस. So even FMCG right now, one should avoid entry on first. So see, the thing is first नहीं है, second है. So I would just say intraday करो, positional मत लो. Okay, intraday में अगर अपने को अच्छा मिलता है, keep rotating strike. Okay, मतलब जैसे क्रिकेट में if you keep rotating strike you make good runs. Keep trading small. ओके, सी नॉर्मली मैं मेरा इंट्राडे का अपने ग्रुप पे जब भी डालता हूँ, आप देखते हो कि आई एम ट्रेडिंग फॉर 70-80 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स. मैं कभी कभी तो 60-55 पॉइंट्स भी लेके निकलता हूँ. आई एम ट्रेडिंग क्वांटिटी 50. ओके, तो 50 क्वांटिटी पे मेरे को अगर 55 रुपीज भी मिला तो आई एम मेकिंग नेट नेट मेरे घर पे 2000 के ऊपर आ जाता है. बिकॉज fixed zerodha will take from my pocket is 350 rupees per trade which I am doing. ओके, तो 7 रुपया मुझे उसके लिए कमाना है, बाकी का सब मेरा है. तो आप भी अभी तो मेरे हिसाब से वही करना चाहिए. ओके, सो जस्ट move into a small zone till you get a clear indication in the direction. जो लेवल्स है वो सपोर्ट भी काफी क्रूशियल है. on Nifty 16900 is going to be a very critical level. Okay, बैंक निफ्टी के लिए भी 35900 if broken, बिंदास शॉर्ट करो. Okay, then you will get that पूरा नीचे का माल. Okay, so I'll be looking forward for shorting only if it sustains below 35900. Okay, I'm looking forward for maybe a small gap down on Monday for sure. I'm not looking at SGX or I'm not looking at anything. I'm just looking at the current situation where we are. क्योंकि कल जब ये मार्केट बंद हो रहा था तभी बैंक निफ्टी वाज मेकिंग स्टिल अ न्यू लो, बट आज का क्लोज इज अबव बिकॉज वो लास्ट 15 मिनट का एवरेज है. ओके, तो जिन लोग ने नीचे में और शॉर्ट किया है लास्ट मोमेंट तक, पीपल वर शॉर्टिंग, उनको बेल आउट करने के लिए एक बार नीचे 200 पॉइंट खोल के वो ऊपर बाउंस बैक कर देगा अगर करना है तो. सो 35,900 और 35,950 विल बी रीटेस्टेड ऑन मंडे फॉर श्योर. वो रीटेस्ट होगा या ब्रेक होगा वो मालूम नहीं. ओके, सो आई एम नॉट predicting that, but at least once it will touch the support line before breaking it, for a more bigger thing, or how do we understand which kind of market should we do short duration trades? So see, this is that, Gautam. See, currently we are not in any trend. Now it is in a range. Now this range, if broken, will tell you which trend we are into. And very similar example for us to understand is we are hitting whipsaws in top bottom. Now, if you go to the basics of top bottom, whipsaws are part of that particular strategy only when we are in sideways, right? Trended में तो पैसा मिलने ही वाला है. So sideways market is when you are looking forward for short trades. Okay. क्योंकि
ट्रेंडेड मार्केट में आप शॉर्ट ट्रेड करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे मैं रह गया, रैली चला गया और मैं रह गया। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये लेवल्स नोट करोगे ना तो आप कभी रॉन्ग नहीं जाओगे। ओके, से मैंने बोला ना 17,500 के ऊपर में निकलेगा तो 18,000 तक का चांसेस आ सकता है। बट अगर वो नहीं टूटा तो नीचे पूरा खाई पड़ा है गिरने के लिए। ओके, so FMCG, let's write down monthly, weekly. Okay, so FMCG ये एक गुड बॉय है। 38,200 उधर का उधर ही है, कहीं नहीं हिला बेटा, दो दो वीक हो गया। ओके, सो डेली कैंडल 60 and price. ये हटा दो, अभी कुछ जरूरत नहीं बेटा तेरा। ओके, वीकली भी थोड़ा बुलिश कैंडल था वो, अबाउट दिस एंड हेडिंग टू 60 एंड अपर बैंड रेजिस्टेंस। वो अभी भी उधर का उधर ही है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये जस्ट क्रॉसिंग 60 मंथली bullish candle, just crossing 60, so this heads। okay, फटाफट चले जाओ, फटाफट। मेरा फॉर्म, आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग विक्स आल्सो टुडे। ओह, मिस्टर फार्मा, see, it showed some at some moment that I'm closing this gap, finally shooting star। ओके, ये गैप भर नहीं पा रहा है ये है फार्मा की बनावट। ओके, ये यहाँ पे अटका है एंड नाउ देयर इज अ शूटिंग स्टार। तो अभी नीचे गैप सपोर्ट, ऊपर गैप रेजिस्टेंस, तो ये तो डोजी पे डोजी बनाने की तैयारी कर रहा है। दिस इज अगेन अ डोजी एट सपोर्ट। ओके, और 60 resistance। So finally this is what I am expecting even in FMCG। this is called as bearish range shift। ओके, कोरोना खत्म, दुकान खत्म। ओके, बहुत राज किया है ये, देखो 2 साल अभी खत्म हो गया ये। नाउ देयर इज अ bearish range shift, so book profits if you are holding, नहीं तो जाएगा ये, दवाई की दुकान पूरा चला जाएगा। ओके, 13 क्या है, 13,460। डेली डोजी, डोजी डोजी कुछ नहीं। हाँ, सी दिस वाज व्हाट वी हैड राइट, डेली रिट्रेसमेंट था उसका, ऑल टाइम हाई के ऊपर में 61%, तो गोल्डन रेशियो तक आके फिर वो वापस गिरा है। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज अ फॉल। ओके, ठीक है, बिलो 60, ठीक है, मंथली 60, फर्स्ट shift। Okay, first is always powerful। Okay, okay, पहले ऑटो देख लेते हैं फिर विक्स देखते हैं। आओ, ऑटो भी बेचारा नीचे नीचे गिरे गिरेगा थोड़ा। if you combine these two candle and if you see this two, it's an evening star at
60 एंड अपर बैंड रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा 20 एम के ऊपर में है, बट इट इज एट प्राइस रेजिस्टेंस। ओके, और ये गैप क्लोज किया तो गुड बॉय, बट सी दिस। ओके, ये अभी भी 60 को टच करके नीचे आया है। ओके, सो नाउ इफ इट क्रॉसेस दिस हाई, दिस सेक्टर माइट ग्रो। इलेक्ट्रिक जो भी चल रहा है आजकल उसमें भी ब्लास्ट हो रहा है। ओके, सो नॉट श्योर, नीड टू क्रॉस दिस बिकॉज दैट इज रेजिस्टेंस हियर। ओके, सो अगर ये क्रॉस किया, और ये देखो, ये और ये दोनों कैंडल भी उधर ही अटका। ओके, सो दिस इज वेरी क्रिटिकल। इसके ऊपर में निकला तो ये वापस इधर तक, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके गिरते जाएगा। ओके, सो बी वेरी वॉचफुल फॉर इवन दिस सेक्टर। सो सी देर इज नो एज सच बुलिश कैंडल वाओ ये सेक्टर में बाई करो, ऐसा अब तक वाओ निकला नहीं है। वाओ निकला शॉर्ट करने के लिए अब तक। ओके, सो दैट इज वेयर वी आर सेइंग थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट करना इफ यू आर डूइंग इट इन स्टॉक्स, क्योंकि टाइम मिलेगा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तभी करो। ओके, अभी कैश में बैठने का टाइम है, कैश में बैठो। ओके, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो निफ्टी ऑटो ऑल्सो डज नॉट गिव यू एनी कॉन्फिडेंस। ये क्या है, उधर का उधर नहीं है ना मतलब। अरे वाह, मतलब थोड़ा प्रगति किया है बच्चे ने। ओके, सो एट प्राइस ये क्या है, सब रेजिस्टेंस बेरिश कैंडल एट प्राइस गैप एंड 60 रेजिस्टेंस बराबर है। ये 2 वीक पहले का ही है, बेरिश कैंडल एट 20 एम रेजिस्टेंस, 20 एम सपोर्ट है, बेरिश कैंडल है। वीकली स्मॉल न्यूट्रल कैंडल बोलेंगे इसको, स्मॉल एट 20 एम और अबाउट 20 एम। चलो, मोर बेटर वर्ड इज अबाउट। and monthly need to close the gap. Okay, below 60, gap closed, gap closed. Okay, so gap close कर दिया है। और हैमर नहीं है, बिलो 60 बुलिश कैंडल है। ओके, बट गैप क्लोज्ड। ओके, so this is what we have on all indices. ओके, मुझे विक्स देखना था क्योंकि विक्स अभी बढ़ना चाहिए, तो विक्स किधर है भाई साहब। तो ये देखो, लोअर बैंड और 40 से भाई साहब सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। अभी ये 20 एम को क्रॉस किया तो विक्स माइट इंक्रीज, सो 21 के ऊपर में नहीं जाना चाहिए। गया तो बहुत वॉलेटाइल होगा, नो डाउट इंट्राडे गाइस विल एंजॉय, बट मर जाएंगे। ये देखो 20 एम ऑन प्राइस सपोर्ट पे डोजी। ओके, सो इट कैन कम टिल 20, तब तक ठीक है, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये भी देखो सपोर्ट पे हथौड़ी, तो हथौड़ा मार के बैठा है, मतलब रुला के रहेगा बच्चों को। So this is the sign. Okay, India VIX is showing support at this. Okay, इसके नीचे नहीं जाता है, that is another story. Okay, and if you look at this, okay, and maybe 40 RSI, okay, जब भी लो मारा रहेगा तभी, so this is really looking dangerous. Okay, विक्स कभी भी 40-60 नहीं खेलता था यार। आप पहले पुराने जमाने का विक्स देखो, ये देखो सोते रहता था वो, एक ही डायरेक्शन में रहता था, और उसका 40-60 का लिमिट भी इतना रहता था। आजकल तो यार 30-32 चला जाता है। दिस इज वेयर द मार्केट डायनामिक्स हैव चेंज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स। आई थिंक कोरोना की वजह से ये बहुत कुछ देखने को मिला है। एंड ये जो कभी भी, ये देखो कहाँ तक गया था मैक्स, ये अभी का नहीं है, सॉरी, दिस इज कोरोना टाइम, इट वाज 86-87। मतलब क्या बोलना चाहता था मार्केट।
right? So this is going to be very critical component to be watched in next 1 or 2 weeks. See, good news is, अगर आपने टॉप बॉटम देखा है एकदम जान से, तो मई जून जुलाई and August are going to be trended months. Now, whether they trend up or down, no one knows. Okay, but they are trended months. So now there is a huge scope for us to follow trend and make money. Okay, so that is for sure. And September is always reversal of what May, June, July, August does. Okay, so August में ही reversal signal देके September will do the reverse. So as a trader, you are seeing market, please be watchful. Do not use your perception. See the chart, see the direction and trade. Huge chances of making big money is on the way. Okay, ये 4 महीने okay are very very powerful. Okay, चक दे इंडिया के स्टाइल में बोलूंगा तो ये 4 महीने आपसे कोई नहीं छीन सकता, एक भी छुट्टी मत लेना. Okay, so this are the 4 months जहाँ पे कोई ट्रेडर छुट्टी नहीं लेता. Okay, so be very watchful and trade as per the charts. Certainly huge money is there in this next 4 months. Let's jump to stocks. मैं आज चालू करूंगा मेरे फेवरेट से, क्योंकि मेरे को अभी वो फेवरेट में भी कल शॉर्ट करने का मन कर रहा था बहुत. ओके, सी दिस इज वेयर इट इज. इट टच्ड व्हाट इट वाज सपोज्ड टू टच. ओके, ये जो हाई था, फॉल्स हाई 2850 का, उसके ऊपर जाके आ गया. ओके, ये कितने महीने के बाद किया भाई साहब ने? इट डिड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. 10th महीना था ये, अक्टूबर नवंबर का. नवंबर आप सोच लो, नवंबर से लेके अप्रैल एंड में इसने वो किया, तो 5 महीने के बाद ये टच किया उसने. ओके, एंड नाउ किसी को लगेगा ये कप है, कप चाय पीनी है मुझे, हाँ तो पियो इसके ऊपर में निकलने के बाद, उसके पहले कुछ मत करो. इट्स लुकिंग गुड बिकॉज इफ यू लुक एट इट, it looks good as a breakout on RSI, and now we are at 60 support. Okay, so if it bounces, see, इसको निफ्टी के साथ कुछ लेता देता नहीं है, इसको खाली नंबर 1 बनना है. ओके, तो ये स्टॉक निफ्टी को किधर भी लेके नहीं जाने वाला है, बिकॉज निफ्टी में बाकी भी 49 स्टॉक्स है. ओके, ये ऊपर रहेगा तो भी, अभी बीच में भी ये काफी ऊपर था, निफ्टी 200 पॉइंट नीचे था. ओके, सो इसको और निफ्टी का कोई रिलेशन नहीं है. Second thing, this is also looking good. No divergence now on here. Okay, तो ये एक स्टॉक है जो बाई में अभी भी खड़ा रह सकता है जब तक ये 60 नहीं तोड़ता है डेली पे. एंड बैंडवॉक स्टार्टेड ऑन वीकली एज वेल. ओके, सो इफ यू आर बाइंग, बाय अबाउट दिस हाई. ओके, सिंपल टर्म्स. एंड इवन दिस, ये देखो, ये शूटिंग स्टार के वहां पे अटका है. शूटिंग स्टार रीटेस्टेड हुआ है मंथली पे, plus there is no sign of divergence yet. This is 71, this is 72, so no divergence at all in Reliance. This stock can go further up. Okay, ये एक स्टॉक है जो जा सकता है, बट पहले हम बोलते थे ये जिधर जाएगा वहां मार्केट जाएगा, अब ऐसा नहीं है. ओके, सो बी वेरी वॉचफुल फॉर दैट. ये स्टॉक एक अच्छा दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं निफ्टी ऊपर जाएगा. Okay, and yes, if you get a chance, buy this and keep in equity. My gut feeling is, this is again my gut feeling, not what I'm seeing from the chart. चार्ट के हिसाब से भी मैं निकालता हूँ कि क्या होता है इसका. अगर ये कप है, वीकली कप है. ओके, सो वीकली कप का आई डोंट नो व्हाट इज द टारगेट, बट मैं जहां तक गुजराती माइंडसेट समझता हूँ, okay, he has already announced splitting of Reliance into multiple company. Okay, so multiple company अगर उसको split करना है, और अगर मेरे 3 बच्चे होते, तो कोई गुजराती 800-900 का कंपनी नहीं देगा, वो मिनिमम 1100 देगा. तो 1100 का मतलब है 3300 is what you should be looking for Reliance to be at. Okay, क्योंकि it's already been announced, it's not a cooked up story. It was announced long back that we are going to split, and this is what you are looking forward to.
3200 is what I am looking forward to on Reliance. Okay, so this is one, uh, and maybe this may be, in 2 months or maybe 3 months, I don't know. ओके, सो ये एक स्टॉक ऐसा रहेगा जिसको हम बोलेंगे बाय ऑन डिप्स भी पॉसिबल है, बट yeah, if you can take care of it in futures, do it in futures, otherwise equity is fine. Okay, now this is one stock which looks really good. Currently it is at gap support, price support. Okay, and once it breaks this, it breaks on the cup. Okay, so if you want to have one trade on Reliance, तो बनता ही है. Hmm. This is going to be little confusing for people. Target. इसमें target will be your own targets because ये all time high zone है उसका. Okay, so this can be your 100 points trade. Okay, and 2800 because this is where the support lies. हाँ, मैंने राउंड नंबर नहीं चूज किया, वो सपोर्ट है उसका, जो क्लोज है वो 2802 itself. ओके, सो एक ये हो गया. देन लेट्स गो टू एशियन पेंट. भाई साहब भी कल बहुत ऊपर जाके गिरा है, बट कहाँ गिरा है वो देखना है. सी दिस इज एट प्राइस सपोर्ट 60 सपोर्ट, just crossed this line. Okay, सी वीकली इसने बहुत बड़ा स्पिनिंग टॉप बना है एट 60. तो जहां तक ये इसको क्रॉस नहीं करता है ना, पोजिशनल बाई तो नहीं बनता है. मंथली, सॉरी, दिस इज मंथली, बट ये मेरे ख्याल से फ्री ट्रेड था क्या इसमें? एनीबडी रिमेम्बर्स ये इतना ऊंचा कैसे गया है? डेली पे समझेगा ना. ये फ्री ट्रेड है. ओके, ये फ्री ट्रेड है, ये ऐसा कोई नहीं मारता है कभी. यहाँ से सीधा इतना ऊपर कोई नहीं लेके जाता है. ओके, सो देन इट इज ओके. seems to be either side. ठीक है, ये देखो, ये इसके यहाँ तक भी एक बार आ सकता है क्योंकि फ्लैग था, फ्लैग का टारगेट हो गया उसका. ओके, तो अभी वो रिट्रेस भी हो सकता है. इसके ऊपर में बाई है वो, उसके पहले नहीं. सो 3288 या 3290 के ऊपर में बाई है, because then it starts band walk on daily and फिर वो एक बार इधर तक टच कर लेगा ये जो भी है, and नीचे में भी उसको उतना ही है. so इसको इग्नोर करो. लेट्स गो टू यूनिलीवर एंड फॉलोइंग. अरे ये देखो, अरे ये क्या टाइम पास है, एवरीथिंग इज गॉट द सेम टाइम. या गैप रेजिस्टेड.
This stock actually looks good on the scale because if you look at it 2200 उसका पहले बहुत strong support था, फिर टूटा डाइवर्जेंस से ऊपर आया, उधर बहुत रेजिस्ट किया. सी दिस जोन इट रेजिस्टेड 2200 a lot. Then finally after results I think ये जंप किया, 2 दिन पहले ही रिजल्ट था उसका, जंप करके उसने 2200 के ऊपर में क्लोज दिया एंड विद अ गैप. Okay, so this is where recapturing by the bulls you can say, but now this is little dicier. And again 61 RSI. तो ये यार करना क्या चाहते हैं ये लोग? And this is also from 40 and then a bounce. So this is also looking good. 2200 से 2300 जाके भी आया. अरे भाई इंडाइसिस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और स्टॉक तो ऐसे दिखा रहा है जैसे अभी वापस चालू हो जाएगा. कंफ्यूज कर दिया यार हमको. See, stocks are looking good. मतलब ये सब तो की स्टॉक्स है. वी सॉ ऑलमोस्ट 3 सो फॉर एशियन पेंट, हिंदुस्तान एंड रिलायंस. दे आर लुकिंग गुड. खाली ये कल का मूवमेंट जो है उसको अगर इग्नोर करो तो दिस ऑल आर लुकिंग गुड. ये अभी भी बैंड वॉक कर रहा है, अपर बैंड है और 60 है. कंफ्यूज्ड आत्मा होने वाला है नेक्स्ट वीक पूरा. ओके, यूनिलीवर देखा, दूसरा लेट्स सी ब्रिटानिया. ब्रिटानिया इज स्टिल रेजिस्टिंग दिस लेवल. देखो ये वो सेम है, इसका भी 3400 है, उसका 2200 है. अरे बाप रे. See, it's a spinning top with volume and a range shift. Britannia is part of Nifty as well. I am not sure. है मेरे ख्याल से ब्रिटानिया भी है. तो बाप रे, ये सब क्या है? गड़बड़ घोटाला पापा. सोचा है जो भाई. ब्रिटानिया 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 मारी गोल. बेटा तू तो मेरी फिरकी ले रहा है. ये भी बाई है एक्चुअली. मेरे को सेल का तो मालूम नहीं पड़ रहा है उसका, क्योंकि सेल इज एट 40 सपोर्ट. ओके, सी दिस. कहाँ सेल? सेल मतलब इसके नीचे, which is too far. Buy is also at too far. But main thing is यहाँ पे गैप है उसको, तो गैप भरने के बाद आप बाय कर सकते हो. मतलब बाय इज एट 3360 के आसपास. कंटिन्यू फॉर दिस. स्टॉप लॉस. इसको यहाँ पे भी गैप है. एक छोटा सा गैप है जहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्ट कर रहा है ये. छोड़ दो. सॉरी, आई विल नॉट बाय यू. सॉरी सर, यू आर नॉट लुकिंग गुड. मतलब सी ऊपर ये ऐसा एकदम हाई है ना, इसका चेन्नई एक्सप्रेस जैसा है. ओके, एक जगह खाई एक जगह कुआ. सॉन्ग है ना उसमें, वो ऐसे ही तो बोलता है बेचारा. मतलब क्या करना क्या चाहता है मार्केट? मतलब या तो इज रेंज बाउंड एंड ब्रेक. सो दिस इज व्हाट यू नो, गौतम पूछ रहा था ना कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई. सी दिस इज द कंफ्यूजन एट दिस स्टेज. मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता चल रहा है इसमें, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज बीन ब्रोकन. इफ यू लुक एट अ हायर लेवल you get a clear idea of this. See this. Okay. See 3400 एक बार उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सपोर्ट लिया,
सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, अभी उसको तोड़ दिया, अभी रेजिस्ट कर रहा है ये। तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा समझ में नहीं आ रहा, और इधर भी वो गैप है जहाँ पे ही उसको अटका रहा है। सो नाउ दिस इज रियली कंफ्यूजिंग मार्केट। मेरे हिसाब से तो 15 मिनट पे 40-60 खेलो and be more confident to short rather than buying. This is what it is showing here. But थोड़ा confusing है because it is at support levels of indicators, हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे बॉलिंजर बैंड ये लोअर बैंड पे ज्यादातर चलता नहीं है, और ये लोअर बैंड से देखो ऊपर जस्ट कूदा है और अभी ऊपर ही है। तो ये कैसे करेगा और क्यों करेगा ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो रुको थोड़ा, सब्र करो, देखो किधर जाता है ये। उफ, बापा बचाओ जो, पापा टीजीएच। आई लाइक इट, आई परचेज इट हियर एट 57, और मैं कल निकल गया 92-93 पे निकल गया था, क्योंकि वो गया ऊपर 3610 का जो मेरा सेकंड टारगेट था वो आ गया था। बट तभी तो मैं बाहर था, आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। Okay, but then later on it went below 60 and I exited my trade, and then see this fall. But now this fall is at support of gap 40 भी, और 57 जहां मैंने बेचा उधर ही क्लोज है उसका, मतलब जहां पे मैंने खरीदा था 2 दिन पहले। But now it does not give me any confidence to re-enter into it because एक तो गैप से इधर भी ये गैप के आसपास में ही भटक रहा है। ओके, आई हैड एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना तो इसमें लोअर एक टाइम फ्रेम पे गैप था। जीरो, ओके, हाँ सी दिस इज द गैप, और वही गैप को रेजिस्ट किया उसने। ये गैप दिखता नहीं है अपने को चार्ट्स पे, डेली चार्ट पे नहीं दिख रहा है, बट दिस इज एन आवर्ली चार्ट, एंड बंद यहाँ पे हुआ है और ये खुला यहाँ पे है। तो दिस गैप इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस फॉर टीसीएस। देखो वो कल का हाई 3613 was around that gap only, but थोड़ा मेरे को डाइसियर लग रहा है। कल का लास्ट कैंडल में इट इज शोइंग बुलिश हरामी एट 40 ऑन आर्ली, बट ये आर्ली कितना माना जाएगा क्योंकि ये 15 मिनट का ही कैंडल एक्चुअली, ये 315 to 330 का कैंडल है। दिस इज रेजिस्टिंग 40 पे, बुलिश कैंडल है। ओके, सो दिस इज दैट कैंडल व्हिच वी आर सीइंग आल्सो ऑन आर्ली। I think कल का fall also, let me show you on bank nifty. Okay, I think Amar sir had pointed it out. मैं थोड़ा पीआरडी भी देख रहा था, इसके लिए मैं पीआरडी के लिए रुका था, but he was spot on when he said there is a divergence also. Okay, and this was the divergence, and the same setup मैंने भेजा था कि मंथली बैंक निफ्टी पे था, एंड देन सी दिस फॉल केम, जो सेम कोरोना के पहले का फॉल था ना, ऐसा ही फॉल है ये। ओके, सो सिमिलर सेटअप एंड सिमिलर रिजल्ट ऑन 15 मिनट्स। वो मंथली था, ये 15 मिनट पे हुआ है।
अभी दूसरा थिंग इज जस्ट सम फ्लेवर टू माय न्यू ट्रेनिंग जो सॉफी का कल हम लोग ने मैंने डाला था. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड इफ मंडे देर इज अ गैप डाउन. ओके, अभी एक बात सोचो कि ये गैप डाउन अगर मंडे को होता भी है, ओके, then my current RSI on 15 minutes is already 26. एंड सिंस मैं इसके लिए बोला ना 100-200 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन नहीं सोच रहा हूं मैं. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी 500-600 पॉइंट्स गैप डाउन एट ऑल, क्योंकि उतना गैप डाउन के लिए RSI विल टच ऑलमोस्ट जीरो. ओके, वो ऑलमोस्ट 10 के नीचे चला जाएगा. अगर वैसा होता है ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो लो के साथ बाय कर लेना इमीडिएटली. 200 300 400 पॉइंट तुमको प्रॉफिट में मिलेगा, बिकॉज RSI हैज टू एडजस्ट. RSI उसके नीचे नहीं रह सकता है. ये 0 to 100 मतलब ये स्पीडोमीटर नहीं है कि आप गाड़ी बंद कर दो तो जीरो पे रुकेगा. ओके, ये मूविंग मोमेंटम है. अगर ये जैसे ही 10 के नीचे गया ना तो बाई ही करना चाहिए, क्योंकि फिर तुरंत एक बाउंस आएगा और वो बाउंस वुड बी टिल 20-25 RSI. तो 15-20 पॉइंट जो आपको मिलेगा ना RSI में, दैट वुड बी अराउंड 400 पॉइंट्स ऑन 15 मिनट्स. सो दिस इज वन ऑफ द लेवल वेयर यू कैन इमीडिएटली बाय अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो. माय RSI is already gone too low. Okay, और so I अगर think गैप अप होता है तो people who are asking me, एक minute, I think someone is speaking but I'm not मैं able to hear that. पाठक पाठक हाँ सर, आप कुछ बोल रहे हो अमर सर? मैं बोल रहा था कि अगर गैप अप होता है तो गैप अप तो मेरे को डाउटफुल लग रहा है. गैप अप होगा तो 40 के रेजिस्टेंस तक आएगा, उसके बाद गिरेगा. अभी गैप अप कितना होता है वो भी देखना पड़ेगा. If it is above 40, then it might be a good gap up. Otherwise, it might resist and come down. मैं तो बेरिश डाइवर्जेंस जब आपको बोला वो टाइम में हाँ मैंने शॉर्ट कर दिया था. हाँ. बिल्कुल नीचे आने पर मैंने कवर करके मैं एक लॉन्ग करके रख दिया हूँ 36,090 पर. अच्छा, आपने लॉन्ग भी किया है. दैट इज भाई बोलता है एक बार तो सर गैप आप बोलिए गलती से भी. लेट्स सी, बिकॉज अभी एक्चुअली ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी देर इज अ डाउन रन. अभी यूएस मार्केट कल जो गिरा है, दे डोंट हैड एनी सच रूल्स लाइक अपना सेकंड मे वाला. और ये सेकंड में वाला रूल डिफर्ड तो कर दिया इसने, तो उसकी खुशी में एक बार गैप अप होता है कि नहीं, वी डोंट नो. बट यस, देयर कैन बी अ साइडवेज, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे मॉर्निंग, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर अस. ठीक है 100-200 लॉन्ग में रहने से उतना चिंता नहीं रहती है. शॉर्ट में रहने से बहुत रिस्क रहता है. लॉन्ग में हाँ थोड़ा आएगा हाँ, बाद वो में. है, बिकॉज पता नहीं ना गैप अप का, ये जो न्यूज बेस्ड फॉल आता है ना, उसमें हम्म गैप अप के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो और व्हाट आई एम सेइंग हियर इज आल्सो, अगर आपने 36-100 पे बाय किया है ना, अगर हम्म गैप डाउन भी होगा ना तो यू शुड वेट, क्योंकि आपको एटलीस्ट आपके प्राइस के ऊपर में तो निकलने मिलेगा. बिकॉज हाँ इफ इवन इफ गैप डाउन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 200 पॉइंट्स गैप डाउन. RSI के पास जगह ही नहीं है और ज्यादा नीचे हम्म. जाने का. ठीक है थोड़ा रिस्क लिया है गलत उल्टा दिशा में लिया है मंडे. हाँ, risk is proper. That calculative risk हम्म, is fine. That yeah. is good. ठीक है. आई थिंक देर इज सम इश्यू इन माई कनेक्टिविटी, क्योंकि मैं आपको लैपटॉप पे सुन रहा था और मेरा बात ईयरफोन से जा रहा है. मतलब जैसे ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चल रहा है आज. ओके, सो ट्रेड्स तो अभी कुछ मिल नहीं रहा है अपने को. इन्फी, ओ, इन्फी हैज गॉट डाइवर्जेंस एज वेल. नहीं, डाइवर्जेंस तो था इधर. सो बुलिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी है. ये सेम आईटी का चार्ट भी ऐसा ही है, सेम आईटी का चार्ट जैसे ही है. सी, इन्फी एंड निफ्टी आईटी आर बोथ लुकिंग एकदम सेम, क्योंकि इसका ऐसे भी जैसे एचडीएफसी बैंक इज ऑन बैंक निफ्टी, नो, दिस इज ऑन आईटी. सेम पल है. देखो यहाँ से फाट करके गिरा है यार, ये सब चीज पोजिशनल शॉट्स था ये सब तो. ये हम लोग करते नहीं ना, उधर ही मार खा गए. इंडिया इंडिया, फिर इन्फोसिस, टेक में भी कुछ कुछ है क्या? टेक महिंद्रा,
अरे सो पूरा आईटी इंडस्ट्री एक बार इसके ऊपर आओ तो लो, नपता मत लो क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। ओके। अच्छा, इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक एनीथिंग ना तो जरा चैट पे डालो, फिर मैं लैपटॉप पे सुन सकता हूँ क्योंकि लैपटॉप का स्पीकर से आवाज आ रहा है, मेरे हेडफोन से नहीं आ रहा। उसके लिए मैं रीस्टार्ट नहीं करना चाहता लैपटॉप। ओके। सो देयर इज नो ट्रेड ऑन दिस आल्सो। एचडीएफसी बैंक कल ग्रीन था, उसको क्या था? ओके, सो दिस इज रेजिस्टिंग 40। See, main thing is the main constituent of बैंक निफ्टी has gone bad. Okay, इसने पूरा खेल खत्म कर दिया है। जो 1400 उसका सपोर्ट था ना, अभी वही उसको रेजिस्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो डेली इज बिलो 40। अरे बाबा, दिख रहा? हाँ तो नहीं भाई। इसको थोड़ा रेजिस्टेंस है 1409 पे। वो क्रॉस किया तो इट विल गो टिल ईयर 20 MA तक। सो द रीजन इज mainly there is a divergence here. Okay, and this is looking good divergence because there is combination here. Divergence plus range shift is very powerful, and that is considered as a diamond category trade for us. Okay, and this is divergence with range shift. Okay, 40 के ऊपर है ये, और ये 30 के नहीं, 35 के आसपास है। Okay, so this really look good, and it's at lower band support as well. So let's see how it behaves here. It's looking good. और कभी भी आप देखो तो एच डी एफ सी बैंक ऐसा है कि ये कोरोना टाइम पे लोअर बैंड वॉक किया रहेगा उसने वीकली पे, बट बाकी कभी भी बैंड वॉक नहीं किया है बैंक ने। ओके, सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट इन दैट सेंस, बट द ओनली थिंग इज आई थिंक मर्जर के बाद एफ आई आई डिडंट लाइक दैट स्कीम एंड दे हैव सोल्ड इट आउट। Okay, so that is the biggest thing. The HDFC Bank is now mainly, DII baby. FIIs are moved out actually. So banking में ये है अभी। कोटक भी कल अच्छा दिख रहा था। कोटक इज एट वीकली सपोर्ट बट अभी ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी उसी में गैप है, गैप पे अटकता है ये। सो स्टॉक सब उल्टा दिखा रहा है और इंडेक्स तो उल्टा ही उल्टा है। दिस इज मतलब एनालिसिस वाले की तो ये वाट मारने वाले हैं। क्या करेंगे मालूम नहीं। ऊपर का भी सिग्नल है, नीचे का भी सिग्नल है, और ये देखो भाई साहब,
क्रॉस करके दिखाओ इसको, फिर हम लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। ओके, सो दैट इज अ ट्रेंड लाइन व्हिच हैज बीन फॉलोड इन दिस केस, एकदम सिंपल रीत से। और अगर आप एक्चुअली देखने जाओगे तो चैनल इज बीन फॉलोड, ट्रेंड लाइन तो छोड़ो, ट्रेंड चैनल है ये। सी दिस, इट्स अ परफेक्ट ट्रेंड चैनल, बट that has left the part from here। तो ये वाले बॉटम ने यहाँ तक टच नहीं किया है, but shows some irregularity in the channel as well, but resisted। Now if it falls, can come back till here। okay, थोड़ा बहुत भाई साहब चलते जाना। तो दिस इज वेयर इट इज। सो ये जहाँ पे मर्ज होता है वहां पे क्या करेगा वो मालूम नहीं है। तो मे बी वही देखो, मे में दिखेगा, द ट्रेंड माइट गेट सेट। So we'll have to wait for this. It's a trend channel which is going for a merger. So we'll have to see what happens। ये थोड़ा अच्छा डिसेंट सेटअप तो है, एटलीस्ट पता है कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे। कोटक कल आई, इसका रिजल्ट है और पीट गया बेचारा एक्सिस बैंक। अच्छे रिजल्ट के बाद भी पीट डाला इसको, मतलब 60 रेजिस्ट किया और सीधा नीचे ही लेके आया इसको, वॉल्यूम के साथ नीचे लेके आया। क्यों भाई? और 40 भी ब्रेक किया है। So we are at price support here, but not sure। Buy cannot be below this, so it has to be about 750 या तो गैप क्लोज करने के बाद ही। तो इसको तो छोड़ दो, गैप रेजिस्टेंस है, जाने दो। तो ये दो बैंक तो थे, चलने वाला है नहीं। विल हैव टू सी व्हाट इट डज। फिर कौन सा है? एसबीआई क्या है? अरे बाबा, ये भी साइडवेज है और 40 के सपोर्ट पे और गैप के सपोर्ट पे है नीचे। It doesn't look that interesting actually। ठीक है, बैंकिंग इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। We saw FMCG, we saw IT। See this, अरे बाप रे, शॉर्ट भी करेंगे तो कितना दूर है स्टॉप लॉस, देखो कौन जाएगा, जाने दो। See, yesterday's fall has created so huge wicks ना कि अभी एंट्री या तो स्टॉप लॉस आर गोइंग टू बी वेरी फार। एंड सी दिस वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। डेली पे देखो इसको, गैप था वहां तक ही, कल आके गिर गया हो। सो ये सब अगर ध्यान में रहता है ना, तो ये सब चीज पे आप इजीली शॉर्ट करके भी यू वुड हैव मेड गुड मनी। सी एवरीथिंग मेनली वाज एट रेजिस्टेंस एंड देन द फॉल स्टार्टेड। तो वो फॉल टेक्निकली भी अभी प्रूवन है। द ओनली थिंग इज वी शुड बी हैव बीन अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। So day to day, if you're doing analysis, it helps you to trade something like this। और मार्केट तो सब बोल बोल के ही कर रहा है कि मैं गैप तक पहुंचा, अभी गिरेगा। The only thing is we are interested only in निफ्टी बैंक निफ्टी, तो हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल इज एट 40 सपोर्ट। हम्म, बट ऊपर में गैप रेजिस्टेंस है जहाँ पे 3 कैंडल से रेजिस्ट हो रहा है। सो ये बाय इज ओनली अबाउट 20 MA एंड यू गेट अराउंड 180 पॉइंट्स। लेकिन फिर रिस्क कितना लोगे? इसके ऊपर में बाई है 4640, इसका हाफ। बाप रे, 100 रुपए का रिस्क कौन लेगा? जाने। ओके, अब तक खाली 2 ट्रेड मिला है अपने को ढंग का, वो भी पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, नो आइडिया। ओके, हाँ ऑटो तो बाकी है, मारुति देखेंगे, मारुति बेचारा।
This is the price support for it. So again, need to see क्या करेगा ये. Hmm. Hmm. नाइन्टी पॉइंट्स नीचे सेल करने का रहा है ये, ऐसा कैसे है, क्या था ये? मारुति का, अच्छा कल का लास्ट ट्रेड 7-7, ओके. मतलब ये भी एक बाउंस बैक मार के फॉल देगा, ऐसे नहीं देगा ये. अबे चल बेटा, अटक क्यों गया? क्लियर रेजिस्टेंस ऑफ 43 MA ऑन आर लिया. सी दिस. कल का पूरा दिन ये देखो यहाँ से चालू था लाल कैंडल, 60 और 43 MA, एंड ऑलमोस्ट एक बार अपर बैंड टच कर दिया उसने, और फिर गिरते गया गिरते गया गिरते गया. सपोर्ट इज स्टिल हियर, सो इसके नीचे ही शॉर्ट है. ये 6 नहीं भाई, 7-6-5-0. क्या था वो, 7-4 था ना? हाँ. MRF क्या बोलता है? अरे बाप रे, ये बच्चा इतना ऊपर कब बढ़ गया? ये है बढ़ता बच्चा, देखो कपड़ा छोटा होता जाए. कब बढ़ा भी तू इतना? तो हफ्ते नहीं देखा तेरे को तो तू तो एकदम धूम मचा लिया इसने. मतलब ये देखो 60 पे डोजी, एंड देन इट वेंट अप. क्या हो गया, टायर कंपनी रिवॉल्यूशन? Oh, there's a more. See, this is what I think. मैंने पहले भी 2 हफ्ते पहले भी MRF का बात बोला था कि 40 support on monthly is good, and see from there it has gone up. It's a morning star on monthly, हाँ by the way. But MRF का I don't think so किधर भी कुछ काउंट होता है. It is now at resistance. See gap resistance very clearly, ये वाला gap है, उसको यहाँ पे भी इतनी बार रेजिस्ट किया है. ओके, तो इतनी बार इधर भी अभी रेजिस्ट हो रहा है वो. जब तक इसके ऊपर में नहीं जाता बाई नहीं, और तुरंत ऊपर में दूसरा गैप रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे भी गैप रेजिस्टेंस है. यू कैन सी दिस, देयर इज अ बेयर सेपरेटिंग लाइन हियर. ओके, so this is a perfect example, okay, of bear separating line, and this will see bullish candle, and then there is a bear which is just below this, right? So a perfect example of bear separating line is here, and this will act as a very good resistance then. So ये ऐसे भी उधर रेजिस्टेंस है ही उसको, और ये कैंडल में और ऐड करेगा. So we'll have to see, यहाँ पे भी कुछ है नहीं एज सच. एक्चुअली शॉर्ट का मन मेरे को बहुत कर रहा है ये लाइन पे उसको, लेकिन सी इट इज इन अ वे
इट शोज अ डाउन ट्रेंड हियर. ओके, ये जो 3 कैंडल है वो, बट ये कल का अगर मैं फॉल इग्नोर करूँ तो ये अपर बैंड पे आ जाता है. एंड नाउ इफ इट क्रॉसेस दिस, इट कैन बी अ बाय एज वेल, बट वो शॉर्ट लिव्ड बाय है. So I will ignore, इसको छोड़ो. हाँ, यहाँ पे भी सेम हाँ चलता है, सेम गैप इज हियर. कोई शॉर्ट का इसके लिए आई वाज थिंकिंग इट इज एट द सेम गैप इज ऑन वीकली एज वेल, व्हिच इज पावरफुल. मतलब सेम गैप अगर दो जगह पे है तो और भी पावरफुल हो जाता है वो. और ऑटो में किसको देखे, बजाज भाई सब भी बहुत भाग रहा था, वो भी गिर गया. सी सेम थिंग, गैप रेजिस्टेंस से देखो इधर भी गिरा है वो. सी इट ओपन हाई सेम है ये, open high same and see then the fall, and see where was that, exactly at the gap, ये वाला. भाव भगवान है तो गैप शैतान है. गिरा दिया इधर भी, शूटिंग स्टार तो बना दिया है, 60 रेजिस्टेंस भी है. So if this is broken, it might be. Yeah, there can be a fall even. See, this is 60 resistance and shooting star now at 60. अरे इधर भी गैप है यार, कितना गैप है, ऊपर नीचे सब जगह पे गैप बना के बैठे यार ये लोग. ट्रेड ले तो ले कहाँ से आदमी, वो तो बताओ भाई. इसके नीचे चलेगा ना, ये कितना है, 37.25. सो 36.75 के नीचे शॉर्ट. 36.75 मतलब 75 पॉइंट्स के लिए ही शॉर्ट है ये. उसके बाद वापस ही यहाँ पे भी गैप सपोर्ट है. छोड़ो यार, ये क्या है ये, मजाक बना के रख दिया मार्केट का. हीरो भाई साहब क्या कर रहा है. अरे इसको भी शूटिंग स्टार विद वॉल्यूम है, ये देखो वॉल्यूम देखो इधर, बिगर वॉल्यूम हियर, बट देन देयर इज अ फ्लैग सेटअप एज वेल. इसके ऊपर में बाई है बट इमीडिएटली सी यहाँ पे गैप है. अरे क्या यार, ये गैप की दुनिया. अच्छा यहाँ पे तो यहाँ पे ही गैप है ना ये. इससे हाई के ऊपर में बाई हो सकता है ये, बट अच्छा यहाँ पे है, अटकेगा, यहाँ पे भी है. दिस इज द गैप, ये गैप है इधर छोटा सा, ये वाला. तो एक बार भर दो, थोड़ा क्लीन चार्ट बनाओ यार. कौन सा है कौन सा नहीं देखा हम लोग ने. हाँ, सीमेंट रह गया है. सीमेंट इज गुड थिंग. ये भी प्राइस सपोर्ट पे भी है और इवनिंग स्टार भी है. भाई करना क्या चाहते हो. हम्म. हम्म. एंड शॉर्ट बिलो दिस. चलो. अच्छा क्या था एसीसी में, मंथली बेरिश डाइवर्जेंस सेटअप, वीकली रेजिस्टिंग 60 and daily has got a इवनिंग स्टार जस्ट अबाउ 60. सो हम ये जो मिडल कैंडल है उसके नीचे वीकेंड को शॉर्ट. ओके, सो 2340 इज द क्लोजिंग. ओके, sell below 2310 so that it crosses the doji low. Target can be first target.
ideally 2240 becomes the target, तो वहां पे सपोर्ट है उसको. वहाँ पे ही है, ठीक है, गैप के वहां पे आएगा तो. इसको थोड़ा इधर देख लेते. We are shorting it below this, so we are expecting band walk. Okay, hourly band walk चालू करेगा वो ऐसा. ओके, 15 मिनट का क्या सीन है उसका, ऑलरेडी नीचे है तो ठीक है. तो ये अगर ब्रेक होगा तो भी चलेगा ना. Okay, so adjusting it as per the intraday movement as well. ये भी शूटिंग स्टार है, रेजिस्टेंस है गैप का, और नीचे गैप सपोर्ट है. सो इफ दिस ब्रेक्स इट कैन कम डाउन टू दिस, क्योंकि इसको बीच में और कुछ नहीं है. ओके, बट लेट्स सी दिस 20 MA सपोर्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है. बट so cement is looking little bit dicier. Okay, ultra, बाप रे, स्पिनिंग टॉप विद वॉल्यूम छोड़ दो इसको, which is even on weekly with volume and at around 40. Okay, so this is okay, but we'll have to now see what it does. So we saw everything. कुछ मिस किया, कोई सेक्टर मिस किया? फार्मा देखा, ऑटो देखा, FMCG, IT and banking. Okay, I think that's it. Okay, so thank you everyone, and let's see how it goes. Okay, again next weekend I'm not there, and I'll try to do recording because I'll be at ashram. तो आश्रम में अगर फ्राइडे को शाम को I will do and I'll send. If possible, I will Sunday evening once I return back home I will do it. But mainly be careful, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, इंडाइसेस पे एंड स्टॉक्स पे अलग दिख रहा है. दिस मीन्स कंफ्यूज्ड स्टेट है, एंड वो कंफ्यूज स्टेट थोड़ा संभल के रहना. ओके, सो बी केयरफुल एंड ट्रेड विथ ओनली सिस्टम बेस्ड ट्रेड्स. अपना कन्विक्शन प्रोडिक्शन मत डालना. ओके, सो थैंक्स एवरीवन एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीक. थैंक यू.